ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਮੈਂ ਜੱਟ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਬੋਲ ਸਹਿਣੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਡੂਮ ਹੈ, ਮਿਰਾਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਬਾਬੀ ਨੂੰ 54 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। 1480 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 1534 ਤੱਕ 54 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਦੀ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤ ਸਮਝੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਚੌਰ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਆਂ ਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਨ ਚ ਆਵੇਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਹੈ, ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਹੈ, ਗਾਈਏ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਢਾਲੀ ਜਾਏ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਆਂ ਕਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋਤ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੀਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸੇਬਾ, ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੱਚੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੜ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕੋਲ ਖਾਣੇ ਵੀ ਚੰਗੇ, ਘਰ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਕਮਰੇ ਵੀ ਚੰਗੇ, ਆਓ ਭਗਤ ਨੇ ਨੌਕਰ ਜਾਕਰ। ਪਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਸੰਤੋਖ ਭਰੀ ਇਸਤਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ 'ਚ 7 ਵਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਜੈਸੀ ਨਾ ਆਵੇ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 7 ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ।
एक कौड़ी सच्चाई है। हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया। दूसरी गल, जे बोली के आधार पर कही, क्योंकि जब किसी का राज भाग होता है, ये समस्या रही है हिंदुस्तान की, वो धक्के नाल अपना धर्म, अपनी बोली ते अपना कल्चर लागू करना चाहता। ये इतिहास की इस मुल्क जब मुगल आए तो गुरु ग्रंथ साहिब जी का वचन है, इतने आदि पुरख वाहिगुरू नूं कहा जाता सी, ते महाराज कह लगे हुण समा बदल गया जी, हुण आदि पुरख नूं हुकूमत वाला धक्के नूं कहदा अल्लाह कहना शुरू कर। आदि पुरख को अल्लाह कहिए, शेखा हरी बारी। इस तो सुनो थोड़ा जहा प्यार, कहते जिन्हों आदि पुरख कहा जाता सी, क्योंकि अज जिहड़ा राज है वो मुसलमान है, ते मुसलमान के गुरु साहिब वेले ये कह रहे हुण आदि पुरख मत बोल, हुण तेनू अल्लाह ही बोलना पे। अगे होर वचन, देवल देवतियां का लागा ऐसी कील विचार, कहने देवतियों उत्ते टैक्स ला दिता गया, देवतियों उत्ते कर ला दिता गया। आप आशा की वार पढ़ ले, एक दुख है, मैं यत्न करना सिर्फ बाणी जो कुछ ते खास करके बाणी सानू इस्तरी रूप च किवें व्याख्या करती है, कितना सम्मान दिता है बाणी ने इस्तरी रूप। और देखो एक वचन तुसी पढ़दे हो, गौ ब्राह्मण गौ कर ला, तुसी किसी विद्वान का टीका पढ़ लो, ये आखिरी अर्थ ये ने कि मुगलिया हुकूमत ने जे दरिया तो गां नूं पार करना है, ब्राह्मण के बाद दोनों टैक्स जोड़ के लाया जाता सी, क्योंकि सिर्फ गां ते ब्राह्मण उत्ते टैक्स। महाराज कहने एडी गुलामी कि कोई टैक्स लैण वाला खतरी बैठा है, गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरना चाहिए, गां के गोए नाल ते चौंका सुचा हो रहा है, पर गां उत्ते टैक्स लगता पाया, क्योंकि उन्हें जोर तक आ दिता। एक होर गल, लोग अक्सर शब्दावली बोली बदल जाते हैं। अज भी मैं तुहानू एक बेनती करनी है, मैं टीमे भी किया है कि गुरु ने हिंदी, फारसी, अरबी, लैकी पंजाबी, संस्कृति, बौद्धिज्म वेले बोली जाती बोली जिन्हों असी गाथा ते संस्कृत कहने, गुरु ने सच ये उन्होंने भाषावां नूं गुरमुखी स्क्रिप्ट दे दिता, गुरमुखी स्क्रिप्ट दिता, गुरमुखी लिपि भी चली गया। ते आपां इत्थे की करने पे, आपां वो पंजाबी नूं देवनागरी स्क्रिप्ट दई जा। मैं नफरत नहीं करता, क्योंकि हिंदी बोलनी सीखनी साडे लई जरूरी है, क्योंकि उस विच साडियां कोई शब्द दीयां जड़ां ने, पर जे तुसी अपने अखर ही भुल जाओगे तो फिर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कल नूं किवें करा। कल मैं गुरु तेग बहादुर साहब से शुरू करनी है कथा, गिरदवा फार्म। गुरु तेग बहादुर की सारी बाणी हिंदी, कोई लफ्ज अरबी का, कोई लफ्ज फारसी का कुछ भी नहीं, पर स्क्रिप्ट सतगुरु ने गुरमुखी का दिया। साधो मन का मान त्यागो, साधो गोविंद के गुण गाओ, मन रे कौन कुमत लीनी, मन की माहे रही। ये सारे शब्द सतगुरु ने, पर जदों समा प्रभाव आंदा, मैं विषय ते रहा, लोगों के धर्म उत्ते हुकूमत वाला धक्का लगता। एक वचन होता है, घर घर मीयां सबना जियां बोली अवल तुमा। ये सतगुरु ने गुलामी का जन्म किया। मुगल आंदा ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਜੀ ਮੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲੋ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਤ ਕਹੋ। उन गुरु साहब ने एक मन चे ना कि गुरु साहब ने बंद कर दे, शायद अरबी फारसी नहीं। बाबा जी ने तो जपजी साहब की पहली पौड़ी में दो भी शब्द वरते, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल हुक्म शब्द सतगुरां ने अरबी का लिया है, ते रजा शब्द ये तो रजाई बने। ये शब्द फारसी का है, गुरु साहब ने अरबी फारसी की रज के वरती की। इवन असी जी पंजाबी बोलते हैं, ये फारसी निकल जाए साढ़े बड़े शब्द खत्म हो जाए। याद रखियो, सरदार लफ्ज फारसी का है, दस्तार लफ्ज फारसी का है, दीवान लफ्ज फारसी का है, साहिब लफ्ज जो है भी फारसी का। असी कहते निशान साहब, गुरुद्वारा साहिब, साहिब लफ्ज ये भी फारसी का।
मेरी गल समझो, मैं ये नहीं कह रहा कि जोर नफरत कर दिया, पर गुलामी करके भय में आके अपनी बोली तब्दील ना करो। सतगुरां ने इस संबंधी भी साडे ते बख्शिश की। उन्होंने बोली के आधार पर इतों तक कि भगत महापुरुष कभी भी रब तो बिना किसी भी चीज को कबूल का ही सच वो भावें उहदे कोल फौज कोई। दो उदाहरण मैं आप जी देना बाणी विच, क्योंकि आप सब कुछ गल सतगुरां की बाणी चो करनी। एक तो तुसीं भगत नामदेव जी के शब्द पढ़ लो गुरु ग्रंथ साहिब। उन्होंने एक शब्द है लंगेरा 27 पदन शायद, सुल्तान पूछे सुन रे नामा देखूं राम तुम्हारे कामा। वो उन्होंने हद की नामदेव नूं सुल्तान जिहड़ा है संगला विच बंद दिता। एक तो उन्होंने कहा जाता है मरी गां जिंदगी का। दूजा शब्द उन्होंने कहा जाता है भी तू राम नहीं बोल, तू रामा बोल, तू खुदा बोल। एक तो तक कि नामदेव की मां नूं भी कोल लिया जाता है। मां पुत्र ते हुंदा तशद्दद दे के तरला मारदी कि मैं तेरी मां का तू मेरा पुत्र है, मेरे कहण ते तू खुदा बोल दे, रहन ते राम मत बोल। उस भगत को ना कि घोड़े ने, ना फौज ना कि जिंदाबाद करने का पीछे इकल्ला है। फिर सुनिए, जी निडरता होंगी वो धड़िया की मुखाज नहीं होंगी। जदों किसी में निर्भयता निर्वैरता ते निडरता पैदा हो जाए, इकल्ला बंदा ही सब कुछ बदल के रख जाता। हुण भगत नामदेव को की वो बंदा बन्निया होया, हाथ पैर उसके नूड़े, उन्होंने बाणी च पूरी डिटेल दी है। मां कहती है तू राम छड़ खुदा बोल, तो अगला उत्तर देंदा तू मेरी मां नहीं, मैं तेरा पुत नहीं। वो कहती खुदा के राम च कोई फर्क है? वो कहना हस्ती एक है, नाम दो नहीं है एक, पर मैं खुदा ता नहीं बोलना मैं जे बंदे पिछे राजे पिछे लग के धर्मी बंदा तब्दील हो जाए, वो धर्मी कदी होगी। इसका मतलब राजा बड़ा होया धर्म बड़ा नहीं। पर कुछ तुका जेड़ियां पढ़ते हो, रुदन करे नामे की माए राम छोड़ की ना भजा खुदाए। इसलिए राम छोड़ की ना भजा खुदाए। वो कहता ना तेरा पुंगड़ा पुंगड़ा बच्चा, ना तू मेरी माहे पिंड परे तो खरगुन गाए। पामों बेड़ी हाथों ताल, पैरों च संगल पाए बेड़ियां, हथां तालियां मार रहे, नामा गावे गुण गोपाल, गंग जमन जो उल्टी गए। कहता मां मेरी ये मैं डराते सन, तू भी मैंने थले सट आई है सुरत करके। कहता गंगा ते यमुना अपना रुख तब्दील कर जान, पर नामदेव अपना अंदर तब्दील नहीं करे। पाँव बेड़ी खातू ताल, नामा गावे गुण गोपाल, गंग जमन जो उल्टी बह, तो नामा हर करता रहे। पर फिर मेरी बेनती सुन, इसका मतलब थोड़ा जा इन प्रतीत होगा, तो मतलब नामदेव ये भी शब्दां के संबंधी कट्टर है कि ये संकीर्ण, ये खुदा क्यों नहीं बोलता? इसका मतलब ये भी संकीर्ण में राम ही बोलने। इतने संकीर्णता नहीं, इतने भगत का अंदर का स्वाभिमान है, ओदी अणख है। उन्हें कहा कि ये तब्दील हो गया तो फिर मेरी भगती का दी उंज अपनी मौत चाह को सारे ना बोल लेंदा जिहड़े इस्लाम विच। मैं अजले कीते तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन, तेरा नाम है अदारा, करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी। ये सारे कुरानिक नाम ने, इस्लामिक नाम। करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, हाजरा हजूर दर पेश तू मनी। अपनी मौज विच आ के कुरान विच दिते रब दे नाम पुकारेगा। पर जे धक्के नाल मास्टर तारा सिंह गल कहते, क्योंकि उन्होंने अक्स अपनी ढंग नाल बना दिता गया सिख समाज। क्योंकि जिसका धड़ा बड़ा बंदा याद रखियो कोई पंथ नहीं है। अकला रहने वाला सच्चा बंदा गदार के भी बंदा। बाबा बंदा सिंह बहादुर 300 साल तक सिख इस स्टेजा तेरे कहते गए डोल गया डोल गया डोल गया। अब पिछले इसे सदी कह लगे नहीं हुए, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 800 साल पुरानी इस्लामी राह की जड़ में बला के रखा। क्योंकि अक्सर हिस्ट्री फैसला करनी समा बीतन देना, क्योंकि जो वर्तमान में चुनता है
उदों सच वाला कई बार दब जाता है, पर इतिहास के वर्के जिहड़े समय के नाल उस सच नूं उभार के सामने देते हैं। मैं आपको बेनती करा कि गुरु साहिब जी इत्थे नाम के आधार पर नहीं, जात के आधार पर नहीं, ईवन कि इत्थे इलाके के आधार की कोई संकीर्णता किवें इलाके के आधार पर गुरु नानक साहब का जन्म सांगलवाद है ना, महाराज बाहर तो चलो अज पंजाब कह लो तो पाकिस्तान बन गया, तो जयदेव बंगाली ने वो बंगाल च रहिंदे है, बाबा फरीद पंजाब में रहिंदा है, जेडे भगत कबीर साहब, रविदास जी, रामानंद जी सारे यूपी अज की बहुत बनारस में बैठे हुए, भगत नामदेव जी महाराष्ट्र मराठे, महाराष्ट्र में वो रब के गीत गाते, जेडे भगत धरनाथ जी ने, भगत कीपा जी ने वो राजस्थान मेरे सतगुरु ने क्या रूहानियत कभी इलाके बनी रखूंगा। सच एवे कि गुरु ने धरातल दियां दीवारां भी तोड़ के सिर्फ एक रब की गल की। मेरी बेनती शायद समझो कि मैं ये कहना चाहना कि जिस स्त्री जाति की अज गल की जा रही है कि अज महिला दिवस मनाया जाए, तो मैं कुछ बेनतियां करनियां ने आप। एक कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच ये नहीं कहा गया कि जी औरत की आत्मा है कि बंदे का शरीर रहेगी तो तां ही रब मिलेगा। कई धर्मां च ऐसा है कि औरत की आत्मा जी है बंदे के चोले में आवेगा, क्योंकि जिन्ने भी लफ्ज वरते हैं ना वो भावें पुलिस वरते नहीं, स्त्री लिंग वरते नहीं आते। मनुख शब्द जोड़ा है मेल है ना, बंदा का जो मेल है ना, पर जब असीं कथा करने उदों ये भी जब असीं कहांगे कुदरत कीमना जानिया बड़ा बेपरवाह कर बंदे तू बंदगी, बंदा लफ्ज पुलिस है, पर जब ये अर्थ करांगे ये उपदेश बीबियां वास्ते फीमेल वास्ते भी है, ते जेड़े गुरु ग्रंथ साहिब के फीमेल शब्द ने वो मेल वास्ते ने। मैं फिर रिपीट करना इस गल मन शब्द जेड़े मनुख वरतिया कई थावां ते दोनों शब्द वरते भाई प्राप्त मानक दे होलिया सिर्फ एक मनुख भरिया हाथ पैर तन दे। कुछ विद्वान कहते पुलिंग ते स्त्री ने दोनों की वरतिया, तन जिहड़ा है वो पुलिंग है ते देह जिहड़ी वो स्त्री हुई, चाहे मर्द हो चाहे स्त्री हो, ये शब्द वरत्या, पर वो कुछ विद्वानों के शब्द ने वैसे इकट्ठा लफ्ज सतगुरां ने वरत्या। असीं जदों मनुख कहांगे बंदा कहांगे वो लफ्ज दोनों वास्ते भी, ते जदों असीं स्त्री वाले शब्द पढ़ांगे बाणी च आवो भैणे, गल मेरा बंदा बंदे नूं भैण कहंदा, बंदा ते बंदे नूं भरा कहंदा, इस तरह कहंदे। पर शब्द असीं कहांगे तां बीबियां वास्ते कि आवो भैणे गल मेरा अंत सेवरी ना मिल के करा कहानियां समर्थ कंत की है स्त्री ने शब्द। पर ये जदों सिंह पढ़दे आ एक दूजे नूं कहंदे आ, मेरे कहने तो मुराद ये है कि गुरु ग्रंथ साहिब च नरोल आत्मा का उपदेश आत्मा को कीता है, वो आत्मा को मर्द का जोड़ा हो सकता है, उस आत्मा को स्त्री का जोड़ा हो सकता है। सत्कार बहुत ही स्त्री मध्य योग में सानू देखने को मिलता है, कई बार अपमान भी बहुत किया। मैं किसी धर्म के उत्ते कोई तर्क नहीं करके कहना भी उन्होंने स्त्री को की क्या, किसी को निंदन की थां अपने गुरु की इन्नी कुछ सिफत करो, दूजे की गल करिए की। तो अक्सर बंदा अज भी क्या जेड़ा बंदा कोई भी पंचायत में बैठा हो, बरादरी बैठा हो, स्टेज पर बैठ जेड़ा बंदा हर बंदे को खंडन करी जा रहा ना, वो धुर अंदर कोई ये नहीं कह सकता लोगों मैं ये तो भी चंगा, ये तो भी चंगा, ये तो भी चंगा। इनडायरेक्टली वो यही कहना चाहता बाकी सारे माड़े माड़े चंगा, क्योंकि वो कहना नहीं चाहता कि मैं चंगा, पर जिस ढंग में वो गल कर रहा ढंग में उसका मतलब यही कि मैं ही चंगा, बाकी सब गलत ने। ऐसी नहीं, हर धर्म के आपो अपने तरीके ने, उन जिन्ने भी धर्म ने बेसिक गल्लां सिर्फ दो ही थे कि एक रब की बंदगी करो, दूजे काम चंगे करो, सीधी गल बेसिक गल तो यही है ना। बाकी तो मेरे का विस्तार होता कर्म केड़े चंगे ने, कर्म केड़े मंदे ने। सतगुरां ने आसा की वार विच कह दिता कि सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर। गुरु साहिब जी ने गुरबाणी विच स्त्री नूं की थां दित्ती,
इस्त्री का की है। एक तो चलो मैं अज भी क्या सारे शब्द पढ़ने हैं, सो क्यों मंदा आखिया जित जमै राज, ये सारी कोट करते हैं। ये शब्द थोड़े जे अर्थ अज मैं उत्थे करके है, भंड जमी है, भंड निमी है, भंड मंगण विआह, भंडो होवे दोस्ती, भंडो चले राह, भंड मुआ, भंड भालीए, भंड होवे बंदहान, सौ क्यों मंदा आखिए जित जमै राजान। ये याद रखो, राजे करना लगा राजान। भंडो ही भंड उपजै, भंडै बाज ना कोई, नानक भंडै बाहरा एको सच्चा सो। जित मुख सदा सलाहिए, भागा रत्ती चार, नानक ते मुख उजलै तित सच्चे दरबार। मैनूं खुशी है तुसीं नाल तुकां बोलियां। पहली गल, भंड के लफ्जी अर्थ सारे इस्त्री कीते। भंड का अर्थ इस्त्री, एक भंड का लफ्ज इस्त्री क्यों बन गया? हुण मैं सुबह क्या मैं जात के आधार पर नहीं कहांगा, साडे पंजाबियां विच ये गल कहंदे जिहड़ा बंदा नकला उतारदा कहंदे मेरा भंड है, भंडण वाला। उंज लफ्ज भंड जिहड़ा है ये भांड तो बनिया शब्द है, भांडा। ये भंड क्यों हुए? सारे इस्त्री इस्त्री का अर्थ करने पर क्यों भंड? शब्द है भांडा। गुरु ग्रंथ साहिब विच भांडा केवल आसमान पाने वाला नहीं, तानों भी भांडा क्या है। आपे भांडे साजियन आपे पूर्ण दे। हजूर ने क्या भांडा धोए बैस धूप देवो, शरीर में भांडा क्या? जहां असी बाणी पढ़ने भांडा अत मलीन धोता कच्चा होए सी। गुरमुखो भांडे का अर्थ है वो चीज, वो पात्रता जिहदे विच वस्तु समाज है। मेरा तुहाडा शरीर भी भांडा क्या पानी, पर औरत नूं इत्थे भांड शब्द तो भांडे तो बनिया भंड। इसका अर्थ है कि परमात्मा ने ये तन को पात्रता बनाया है जिहड़ी अपनी सामर्थ को संसार में जन्म दे सके। ताकत लगते हैं वरना के भाषा के भांडा इन जिंदगी में शब्द करते हैं कि भंड के सतगुरु शब्द करते हैं भंड जमी है, भंड निमी है। जे थोड़े जब आप करते हैं मैं पता आपको शब्द कितने होने। भंड जमी है, इस्त्री दे राही ही जन्म लिया जाता है। भंड निमी है, जिस वक्त तेरा जन्म नहीं होया, क्योंकि तबका जमीन पहला आ गया, जमीन बाधा है कोई चीज है। अब जमीन पहला आएगा तो जमीन जमीन जो बात है भंड जमे भंड में और व्यक्ति का पहला शरीर गिरता अंदर एक निका के सर निकलना शुरू होता है, फिर जाता है भंड जमी है, भंड निमी है, भंड मंगन विआह। इस्त्री है जिदे राही तू निमिया है, इस्त्री है गुरु नानक साहब कहते जिदे राही तेरा निमन तो बाद कुछ नहीं जिन्या बाद जन्म हो। भंड जमी है, भंड निमी है, भंड मंगन ते इस्त्री नाल तेरी मंगनी हुई, ते इस्त्री नाल जिनके मंगनी हुई उत्थे तेरा विआह है। एक कमाल ने कमाल कर दिया। भंड जमी है, भंड निमी है, भंड मंगन विआह। ते इस साडे मंगन और विआह दे विच एक शब्द होर हुंदा कुड़माई। गुरु ग्रंथ साहिब चाहे जिन्होंने अपने अजकल शगन कहते हैं, साडे पुराने बुजुर्ग छुहारा कहते सन, उंज लफज सी कुड़माई। कुड़माई का भी अर्थ बड़ा डूंगा है। कुड़माई का अर्थ है वो रीत जदों बच्चे अपने कुटुंब विच मिलान का काम शुरू हो जाए। कुड़माई का अर्थ कोड़मे विच लड़ाना, जिन्होंने बाबा जी कहते सत इंसान के अंदर के जेडे जज्बात को किसी ने शेयर भी नहीं कर सकता।
क्योंकि साडे समाज की बनतर इन्नी पलीत हो चुकी है, कई बार उसके अंदर की शुद्ध भावना को लोग गलत रंगत देते हैं। उस इंसान को महाराज कहने स्त्री की मौत हो जाए तो इंसान के अंदर मेरे घर का बुआ खुला है, घर का दरवाजा खुला है, फिर वो दूसरी स्त्री भालता है। गुरु कहता तू किवें कहना मैं बड़ा उत्तम हाँ, तेरे घर में सब कुछ पिया है, खान पीन सब कुछ साजो समान पे मैंने बख्श दे दे। एक दिन घर मां ना होवे, स्त्री ना होवे, धी ना होवे, मैं कल्ले रखे दे औरत नहीं करते एक रिश्ते ना नहीं। जदों असीं घर वाले सच्ची होवे बंदियां दे कपड़े भी उस तरह खेड़े खुंडे पए हुंदे आ, क्योंकि औरत तो बिना घर का शिंगार नहीं हो सकता। बाबा जी क्यों तुम्हारा किने कह रहे भंड हुआ भंड भागी है, भंड होगा बंधान, बंधान आ रिश्ते औरत करके तो तेरे रिश्ते कहने। मैं बड़े बंदे देखे जिस दिन मां मर जाए उस दिन मामे अपने भी छुट जाए हुंदा ना जी, उस दिन घर का काम। जिस दिन मां गई उस दिन मामे गए। मैं सच कहना क्योंकि फर्क पै जाता। गुरु कहता तेरा रिश्ता भावुकता जज्बात तां जुड़े जे मां कहता स्त्री कहता। पंड हुआ पंड भालिया, पंड हो गए बरदान, सो क्यों बंदा आकी है जित जमै राजान। वो जिन्हें राजिया महाराजिया सतवादी बंदियां को जन्म दिता तो उन्होंने माड़ा क्यों कहना। मैं सिर्फ अज की स्त्री दिवस से थोड़िया जी गल्लां आपना करनियां ने। एक तो शब्द जरूरी सी क्योंकि सारे इको तो की गुटका कोट करते बाकी नहीं करते। गुरु ग्रंथ साहिब जी स्त्री की गल की गई यही ना, सोचो मंदा आकी। महाराज कहते सोचो मंदा आकी जित जमै राजान, भंडो ही भंड बुझाए। सुनो वे मैं कहना जेडी अज त्रासदी कि घर धी जन्म ले ले सच्ची ये लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। धी जन्म ले गुरु ने इतने नहीं क्या भंडो ही पुत उपजे, इतने क्या भंडो ही भंड उपजाए। स्त्री तो ही स्त्री जन्म लेती है। याद रखिए औरत को जन्म नहीं देगी तो तेरा घर अगे चल नहीं सकना। इस करके रब का शुक्र कर एक भांडा दूजे भांडे को जन्म देता जो कल को भांडा बन सकता। भंडो ही भंड उपजे भांडा बाज ना कोई, नानक भांडा बाहरा देखो सच्चा सोए। एक रब जिन्होंने मां जन्म नहीं दी वो अजनबी है, वो स्वयं है, स्वयं है। उन्होंने किसी मां ने जन्म नहीं दिता, ना ताता है ना माता है ना जाता है ना पाता है, निर्साधन शरीर है। उसकी कोई मां नहीं, उसका कोई प्यो नहीं, उसका कोई इस तरह रिश्तेदार नहीं। भंडो की भंड उपजे भंडा बाज ना कोई, नानक भंडा बाहर एको सच्चा सोई। अगली तो की ये तो तक स्त्री की गल जित मुख सदा सलाई है भागा रत्ती चाह। इतों तक स्त्री की गल की। अगे महाराज की लिया केवल बंदे का मुख नहीं, जित मुख जिस मुंह राई वो मुंह भावे स्त्री का होवे भावे मर्द का होवे, जिस मुंह विचों प्रभु का नाम निकलता चेते रखी वो मुख उजला ही होगा। ये मत समझ के मर्द नाम जपे तो उजला औरत नहीं। ये सुनो फिर एक बरीकी पाई जित मुख सदा सलाई है, जिस मुख राही परमात्मा सराया जाता है। भागा रत्ती चार नानक दे मुख उजले तित सच्चे दरबार हो दे दरबार ये नहीं बैठना तू मर्द गए ते स्त्री परवाह नहीं। जिस मुंह ने रब की सिफत की वो मुंह रब के घर में उजला। अगली गल आप आसा की बात पढ़ देना एक बार अगे भी थोड़ा बोल के गए आसा की बात। स्त्री बारे कहा जाता है कि ये सूतक है अपवित्र है। इस पाठक के सूत्र दो ने पाठक का संबंध मौत नाल कमाल की गल। पाठक का संबंध फीमेल मेल दोनों नाल है, पर सूतक का संबंध कला बीबी के नाल। सुचनता रखनी जरूरी है। हुण सतगुरु की कहते कहना उस औरत ने अपनी कुख बच्चे निमया, रब ने उसे बख्शिश की, उन्हें संतान को जन्म दिता। कहने टिड्डी बात की स्मृति जो जन्म दिता चाहे उन्हें करके लिखा दिता अपवित्र ये घर की रोटी नहीं। महाराज कहने बच्चे के जन्म से बुलाई वो अपवित्र क्यों। याद रखो साड़ी सिख रहत मर्यादा क्या है
जिस दिन सूतक का ध्यान ही गिनती नहीं करनी, मेरी हाथ जोड़ के बेनती 21 दिन हो गए कि चौंके इसलिए चौंके चढ़ना कहते ना भैया, चौंके चढ़ना 21-31 दिन मैं लिहाजा च लिख दिता है जिस दिन मां उठन बैठन जोगी हो जाए, क्योंकि अज कई बार सर्जरी होंगी नहीं उठा बैठा, जिस दिन मां उठन बैठन जोगी हो जाए उन्होंने इशनान करा के, कई बार डॉक्टर कहता इशनान नहीं करना, गुरुद्वारा साहब देग ले जाओ, अरदास करके बच्चे का नाम रखा जाए, सूतक का वहम नहीं करना। हुण देखो बाबा जी ने क्या की, उन्होंने क्या सूतक है औरत जी अपवित्र है, महाराज कहने लगे औरत को तू 21 दिन अपवित्र कहना है, तू तो जन्म तो लैके मरण तक ही सूत गया हुआ, तू तो अपवित्र है। नवी गल की महाराज क्यों अपवित्र है, कह लगे जदों तेरे मन च लोभ के फुरने पैदा होंगे ने तेरा मन सूतक होगा, जदों तू जीभ तो झूठ बोलना तेरी जीभ में सूतक लगा होता है, जदों अखां नाल तू पराइयां इस्त्रियां नूं मंदे फुरनियां नाल वेखना है उदों तेरियां अखां सूतक विच हुंदियां ने। इन्हां नूं कदी भ्रष्ट नहीं कहना, इन्हां नूं अपवित्र क्यों नहीं कह रहे। जेकर सूतक मन्निया सब तै सूतक होए, गोह अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए। मैनू ये याद है कि भावें चल साडे घरां च अजकल असीं गैस चूल्हे वरतने, पहला सुक्का गोया तपना वो वरतना, ते जदों गोया सुक जांदा सी उन्हें कीड़े जन्म लैंदे सी। मैनू याद है जदों तुसीं घर गोए बालदे सन बीबियां, गोया तोड़ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कीड़ा निकलो, कीड़े ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਬਣਾ ਕੇ बाबा जी कहने लगे बेचारा अजे तो जमे गोए परा साडे कसूत के, जे जन्म भी अपवित्रता है ते तेरे घर विच बलन वाला गोया भी पवित्र है, ते अगली गल तू पातक नाल ही कर दिता, जेड़ा कीड़ा जम्मिया वो गोया डाह दिता अग दे विच, वो बेचारा जिंदा भुन के रख दिता नाल पातक भी आ गया। जे जम्मण मरना सूतक पातक अपवित्रता है ते फिर ये तो तेरे चूल्हे च हो गया। जेकर सूतक मंगीए ते याद रखियो जेकर के ये नहीं कह मैं सूतक मानना, जेकर सूतक मानिया सब तै सूतक होए, गोए अतै लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जिथे दाने अन के जिया बाज न होए, पहला पानी जियो बैठे भी सूतक है। जे तारिया सब कोई सूतक क्यों कर रखी है, किवें तो अपने आप को जान जा सूतक पवैर सोए। इत्थे भी गुरु जी ने कहा मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना पर तेरे पर तन लूट, कन्नी सूतक कन पाए लाड़ अतबारी खाए, नानक हंसा आदमी बदे जंप लजाए। मैं आपको बेनती करा गुरु साहब ने बख्शिश की। अगली गल मैं इतिहास की जरूर कोई ना कोई सुना के जाऊंगा, तो मेरी इच्छा गुरबाणी च असीं कल्ला ये नहीं कह सकते सो क्यों मंदा आकी है, यही केवल क्या मैं सुबह बेनती की। औरत को दो चीज़ां रब ने दित्तियां ने, एक आत्म त्याग ते एक सहोदरता। सहोदर ये दो चीज़ां शायद मर्द को ना इंदियां होण, आत्म त्याग ते सहोदरता जिन्नी जन्म की ताकत रब ने उन्होंने दित्ती। हालांकि बाणी करूप कुलखनी दुहागन शब्द वरते ने तो मन उठते गए, पर गुरु ग्रंथ साहिब च लिखा भी औरत विच आत्म त्याग बड़ा है। देखो जदों किन्ने पड़ाव ने, मैं एक बार पंजाब भी कहा कि एक बच्ची की मौत 5 पड़ावां मार के रख देते हैं, क्योंकि जो लोग कुख नहीं पालन देते तो उन्होंने एक खतरा बड़े कारण ने समाज के। एक तो समाज दाज का मुंह अट के खड़ोता है, दूजा सच्ची इवें मर्द प्रधान समाज कई बार बाहरों आई धी दे रूप सरकार नहीं प्यार नहीं होता। मैं कई बार कहना जदों मापियां कर दिंदी है तो समाज कहता नहीं इन्हें किहड़े सदा रहना है, पराई है तुर जाना है। तो जिस घर में सब कुछ छड़ के जाके त्याग करके वो भी मुंह ला के कानून गल्लां करते हैं, छड्डो परा ये किहड़ी अपनी तर बेगानी आई। पहला घर च पराई, उस घर च बेगानी। पहला पड़ाव है प्यारो जदों वो धी दे रूप च हुंदी है। दूजा पड़ाव है जदों ओहदे घर भरा पैदा होंदा वो भैन का रूप धारण करदी। तीसरा ओहदा पड़ाव है
कि जिस दिन विआही जाती है उस दिन सुहागन का रूप हो जाता है। तो देखो हर थां से उसका त्याग आपो अपना, जे बेटी है तो उसका त्याग अपने, सच्ची जी बेटी है वो सब कुछ अपने माँ बाप की खातर सब कुछ दाव ते लाती है। जे धी है ये मैं कह रहा, जे भैन है मैं सारे नहीं कह रहा, क्योंकि हो सकता है किसी को गलत उदाहरण भी हो, तुम आके कहे पर बहुत गिनती जब भैन बनती है भरावां की सुख मंगती है, धी बन के प्यो की सुख मंगती है, सच एवं भैन बन के भरावां की सुख मंगती है। तो जिदन सुहागन बनती है तीजे पड़ाव से उस दिन पति के लिए सुखा मंगती है, जिदन मां बनती उस दिन औलाद लिए सुखा मंगती है। एडा बंदा किसी को आत्म त्याग से सहोदरता होगी, अंदर धने को होगा, धी भैन सुहागन ते मां ते याद रखो जिदन दादी बनती है उस दिन पुत्तां तो वध पोतियां ते पोतियां दा सुख मिलदा, वो पड़ा दर पड़ा चली जाती। सन मैंने याद है मैं स्टेज पे 10 दिन छोटे होंदे मेरी नानी एक गल मैंने कहानी सुनाती सी, पर अज तक भावें मैं 5-6 साल की उम्र सुनी है पर मेरे ज़हन च अज तक घटना नहीं। मैं खास करके बेनती करांगा मेरे वीरों बीबियों भैनों तुहानू, ठीक इन्होंने पता मर्द प्रधान समाज बहुत कुछ जतांदा है, बहुत कुछ जतांदा है, पर जिहड़ी धी घर जन्म लैंदी है ना, याद रखो सकदा ਉਹਦੇ जन्म नाल ਤੁਹਾਡਾ भी पार उतारा हो जाए, अपने भाग लैके ਉਹਦੇ भागां ਵਿੱਚ क्योंकि रुखापन्ना बड़ी कथा तुसी राबिया का नाम सुने, मुसलमान फकीर होई राबा कहते हैं कि अरबी में जेड़ा राब का रब है ये अर्थ में चार जो 1 2 3 4 कहने ना, अराबिया का अर्थ ਹੁੰਦਾ चार। बड़ी बड़ी आत्मा सी दरवेश सी, जब इसका जन्म होया ये अपने मापियां की चौथी बेटी सी, तां राबिया बेटी चौथी बेटी होने करके इसका जन्म होया तक अरब में हुई। ते मां ने यदि मां ने यदि बाप को कहा कि एक काम करो गवांढियां तो तेल मंग लियो, कुड़ी का जन्म होया है इन सवेरे मालिश करनी। वो जदों धी जमी इको दम उन्होंने घर के दीवे का तेल ही हो गया, हनेरा हो गया बंदे, पर वो मन च है कि वो जी मनहूस हुई है जिसे जन्म नाल घर का दीवा भी बुझ गया। वो गवांढियां पर तेल मंगण गया तो बूहे को जाके गया ना पिया बुआ खड़काम, पता नहीं की होया अंदरों आवाज आई नहीं धी होई है पर मैं अपनी धी ली तेल भी किसी तो नहीं मंगना, ते फुरना नाल आ गया पता नहीं घर का दीवा बुझ गया। इस्लाम का वो सूफी सही कहता है प्यो के कन्ना च आवाज पई कि जिसनू तुम मनहूस कह रहे हैं कि एडी अल्लाह की प्यारी दरवेश होगी, काबा भी यदि परिक्रमा है, ये ऐसा सूफी साहिब में क्या जाता है, और वो बड़ी ऊंची दरवेश हो। मैं आपको जी बेनती कर लगा कहानी छोटी जी है, क्योंकि मैं आज तुम बुजुर्ग बैठो सच्ची जे साढ़े जिन्हें उदों आए सन छेती कितिया धी 5-7 साल तक आंदे भी कोई नहीं सकता, ये सुन देखने मिले चुकन की गल बड़ी दूर। बाप अक्सर मैं फिर बेनती करा 80% प्यो जेडे सन कुड़ी नूं चुक के नहीं सन देखना जी पई है। वो कहानी है कि सच है, मैंने उन्हें सुनानी करनी में बड़ी चंगी लगी, तो मैं कई बार कथा च कोट भी की। उन्हें दसना भी एक बारी संतान पैदा होने वाली सी ते पहली औलाद कई इलाकों का रिवाज सी कि बेटे घर पैदा हो, इवन के बेबे नानकी भी नानकी तां नानके घर पैदा हुए, क्योंकि माता तृप्ता ने बेटी को जन्म अपने पेके कर दिता सी उन्होंने रिवाज मुताबिक। ते उन्होंने का पिंड चाल है लाहौर के नजदीक, बहुत सोहना गुरुद्वारा बनया वो स्थान, सराहां बहुत सोहनिया बनिया ने उत्थे। हुण उसने स्त्री ने अपने पहली संतान को जन्म देना सौरे घर वालों पति वालों भी सी कि जे तां पुत्र होवे ते रखना है, जे लड़की कोई ते खत्म कर दे। ये हुंदा रहे ये पाप कभी लैंदा नहीं जे चेते रखे।
कई बार मुंडिया वाले रुटियां पाते, साढ़े को 2 ही मुंडे, साढ़े को 1 ही मुंडा, 3 ही मुंडे, वो सारी जिंदगी रुलते रहते। रब धियां वाले इन्ना को भाग लाता, उन्होंने कभी किसी चीज नहीं। उन्होंने ये शब्द किया कि बेटी को तो रखनी नहीं, रब की करनी उस बेटी ने जन्म लै लिया। हुण औरत रोई क्योंकि सौरा परिवार पति की गुस्सैला है, उन्होंने साइकी हो जी पत्थर वर्गी। उस घर के पेटे घर से बजुर्ग बड़ा धर्मी सी, उन्हें कहा धीए गल समझ, कुड़ी इस बच्ची को मारियो ना, कहता असीं पालदे असीं हां, तुसीं इहनूं मारियो ना। सच जे वो बंदा साल बाद आया, इन्नी टाइम ना पूछा जी, वो कहते संतान धी हुई सी, खत्म कर दी, कुड़ी बेटी लुका दी, वो वापस चली गई गली, पर अंदर गंढ रखी दस्या नहीं। धीओ नानके पालते रहे, बुजुर्ग ने बड़ियां सीसां देनियां, वो पालते रहे। एक बारी अर्जन छेब दोनों जने आए, ते वो कुड़ी मेरा ख्याल 9 साल 8 साल की बेड़े च खेडे पई, ते पुछदा ये कौन। उस बुजुर्ग ने सोचा भी आखिर बच्ची इन्नी सियानी का अंदर ढल गया होगा, कह लगे तेन दसिया नहीं सी, तेरी धी है, ये तेरी बेटी है। इन्ना पत्थर बंदा कि वो कोई असर नहीं होया, गुस्से जिमें, पर उदों मन गया चलो घर लै गए, घर लै गए। उन्हें क्या दसना किसी ने, रात पहुंचे सवेरे खेतों च आवेगी रोटी लैके, कहता ये मेरी इज्जत नूं दाग लाएगी, इनू मैं खेतों च वध के नप दे, मैं घर नहीं रखना, तुसीं धोखा कीता। वो सच्ची मुची टोआ पट्टन लग पिया, कहानी है, टोआ पट्टन लग पिया। प्यारे कहते नहीं, वो कुड़ी नूं चाह इन्ना सी मेरा प्यो मिले, ਉਹਦੇ अंदर की ममता सी, मेरा बाप है, बाप का अंदर पत्थर बनिया पिया। ਉਹਨੂੰ रात नींद कितने पैगी, मेरा प्यो है। वो सवेरे चाई कपड़े लैगी, रोटी लैगी, चुन्नी सिर ते मां रोवेगी अज बाप होना है। वो मिट्टी पट लिया सी टोया, ते मिट्टी थल्लों रद्दे सटदे कई ना, ਉਹਦੇ परना छड़ा वो मिट्टी में भरिया गया। ने जाके आवाज दी बापू चाह नाल, उन्हें लाल अखां नाल देखिया, उन्हें पूना रोटी थले रखी, लस्सी थले रखी, प्यो बैठा सी, एकदम दौड़ के ओदी दाढ़ी ते परने नूं झाड़न लग पई, कहंदी बापू तेरे सिर ते मिट्टी चंगी नहीं लगदी, दाढ़ी में झाड़ दिया। बस इन्नी गल कीती कि परना ते दाढ़ी मिट्टी में झाड़ दिया। कहंदे पत्थर दिल भी रो पिया, सीने नाल ला के कहंदा धीए जे तू मेरे परने ते मिट्टी नहीं बर्दाश्त करती, तू मेरी पग नूं कदी दाग नहीं करी। कहानी माता सच में नानी मेरी सुनानी कर, मैनूं जिंदगी पर कहानी भुली नहीं। मैं तुहानूं बेनती करांगा कि गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछोगे तां चलो कह दिता इस्त्री का सम्मान की है। मैं सवेरे भी कहा गुरु ग्रंथ साहिब जदों पाठ करने हैं तकरीबन 60-65% पैसे बेटे मेरे बच्चों का करनगी, 60-65% बाणीकार स्त्री बन के बेनतियां कर, इनू कभी बरीकी बाणीकार बाणी वाला है मर्द, पर वो स्त्री बन के तरने ले रहे। जिमें गुरु नानक साहब का चेला वैगुरु चोला मरदाना है ना, तो बाबा जी कहते मैं पंजाब में राम की तरह नाम बकर बाबा थी, ये स्त्री है। भगत नामदेव का चोला मरदा वाला है, ते शब्द कह रहे हैं मैं बौरी में राम पतार रच रचता को करूं शिवा। गुरु अमरदास का चोला मरदा वाला है, ते आवाज दे रहे हैं मैं कानून मेरा पंथ करतार, जिया कराए त्या करी शिंगार। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी सच एवे जदों स्त्री बन के गुरु भगत बेनती करता उन्होंने मरदाने पुणिया की खंकार पास रख दी, क्योंकि शब्द कहने तू कोई जनानी, उन्हें प्यारे गुरु ग्रंथ साहिब कहता रब रीझ देता है जे जनानी वाले गुण पैदा हो। जे शब्द कह रहे ना कोई अर्थ है, जिवें सतगुरु कहते जाए पुछो सुहागनी तुसी राधिया किन्नी कुड़ी। बाबा फरीद साहब जदों दैवी गुणा की गल करता है तो स्त्री बन के पुछदा है। हालांकि इस्लाम में मैं सवेरे भी क्या मस्जिद भी जाना
इस्त्री नहीं कोई जा ही नहीं सकती। पर वो सूफी दरवेश जो कहता कवन सो अखर कवन गुण कवन सो मनिया मंत्र कवन सो वेसो हों करी जित बस आवी कंत। औरत बन के कह रहे हैं, मैं अर्थ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बेनती कर रहा कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच औरत का आत्म त्याग ते औरत की सुहदर जिहड़ा सुहदर गुणा है ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਕਹੇ ਕੌਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਕਹੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਤਰ ਕਹੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇਸ਼ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੌਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕੌਣ ਗੁਣ ਕੌਣ ਸੋ ਮੰਨਿਆ ਮੰਤ ਕੌਣ ਸੋ ਵੇਸ਼ੋ ਹਉ ਕਰੀ ਜਿਤ ਬਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਖਸਮ ਕਿਵੇਂ ਆ ਪਾਸ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਮਨ ਸੋ ਅੱਖਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਖਮਣ ਗੁਣ ਸਹਿਣਾ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਨਿਮਨ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਮਣ ਗੁਣ ਜੇਵਾ ਮਨੀਆਂ ਮੰਤ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਬਣ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਆਪ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਕੌਮ ਮਿਲੇ ਕਿਤ ਗਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਲਨ ਰਾਵਿਆ ਕਮਨ ਗਤੀ ਸਕੀ ਬਤਾਵੋ ਮੁਝੇ ਮਤੀਰੀ ਸੋਭ ਸੋਭ ਸੁਭੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਨਿਰਦਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣ ਬੰਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਰੱਬ ਰੀਝ ਜਾਏ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ थोड़ा जिहा इतिहास गुरु घर में जिस मां ने जन्म दिता उन्होंने भी नमस्कार की बाणी धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए जननी क्या। बाबा फरीद कहता आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तेन धन जने दी माऊ आए सफल से तेन धनता जो भी उन पुराने शास्त्रकार कहते सन ढाई मावां ने पुराने कहते सन। मैं थोड़ी जी तुहाडी नज़र हुण सिर्फ इतिहास पर जाके समाप्ति करनी है क्योंकि हर रोज दो दो कथा ने। देखो ढाई मावां एक फरीदी मां एक धरूदी मां अद्धा हिस्सा गोपी चंद की मां का मनते सन क्योंकि फरीदी मां ने नहीं प्रेरिया ते धरूदी मां ने ये दोनों दी मावां क्योंकि फरीदी मां का विधवा सी जी उन्होंने पति की डेथ हो चुकी सी एक संतान सी पर मां ने इन्ना प्रेरिया असी सारे पढ़ते हैं कि मां एडी कमाल की रूहानियत पहुंची हुई सी 30 साल 32 साल फरीद ने साधना की। जदों 12 साल बाद वापस आंदा सी ते मां कहती सी पुत्र अजे तेरी सुरत एडी उच्ची नहीं हुई तू ख्वाजा बख्तियार काकी का शागिर्द बन सके क्योंकि इन्हां दे मुर्शिद का नाम सी ख्वाजा बख्तियार काकी इन्हां दे मुरीद का नाम सी हजरत निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया इन्हां तो बाद गद्दीकार सन ते फरीद तो पहला जिहड़े सन हजरत बख्तियार काकी इन्हां दे मुर्शिद सन। मां दी सुरत इन्नी चंगी सी हालांकि हजरत बख्तियार काकी साहब इन्हां दे पिंड आए कि उन्होंने देखा बच्चे नूं गल कही सी बेटा साबरां दे राह हो अजे समा नहीं आया थकी ना अकी ना हर रात तो बाद प्रभात होंदी है तू छड्डी ना इबादत एक दिन तेरी जिंदगी में प्रभात जरूर होए। परमान नहीं तोरिया किस ढंग दे नाल उन्हें को गल कही अल्लाह की सारी शाने भी तू रब की बंदगी कर। वो न्याणा से उन्हें क्या रब देंदा कि उन्हें क्या पुत्र उसके कोल शक्कर से उन्हें क्या मिठा शक्कर देंदा है। एक शक्कर की पोटली तो मां ने शुरू किया 8 साल के फरीद में मां ने हाफिज बना दिता। आप ही आप समझे ना जिन्होंने कुरान सारी जबानी चेते हो गया 8 साल की उम्र मां ने घर बिठा बिठा के पुत्र को हाफिज बना दिता। उन्होंने जीवन की घटना है बहुत कुछ फरीद साहब बारे मिलता है। एक पंजाबी की किताब है गुरु ग्रंथ साहब विचले बाबे फरीद की भाल प्रोफैसर प्रीतम सिंह उन्होंने लिखी है जे किसी को शौक है पढ़ने का क्योंकि शौक नहीं ना कि पढ़ने का शौक ही कोई
मैनूं याद है साडे पिंड च पहलां बैठे ने चाचा सुबंध सिंह, वो करतार सिंह क्लास वाली है तो सारे पढ़े जाते सन खालसा बारे जिहड़ा राज जिहड़ा सी वो अजकल नहीं कोई पढ़दा। अज पहली गल ते पिंडां विच सत्थां ही खाली कोई दो चार बजुर्ग बैठे ने न्याणे जिहड़े एक मुंडा है वो उंजी घर बैठा उन्हें सत्त जाण की लोड़ कोई नहीं, उसकी जेब के विच सत्त फोन दे कोल। सच्ची जे जो कुछ बजुर्गों को बैठ के सिखण नूं मिलदा सी वो किताबां विचों नहीं जे मिलदा, उन्हां दी जिंदगी दे अपने तजर्बे से उस किताब विच एक घटना दित्ती कहते हैं कि फरीद कई सालों बाद आया तो ਉਹਦੇ वाल सुके सन ते मां ने कहा लिया वे फरीद मैं तेरे वालों नूं तेल ला दे। फरीद साहब पग नहीं बांधते सन जी, उन्होंने जिक्र भी किया फरीदा मैं घुड़ावा पग दा। वो जो तेल लाने लगी भरजाई ने क्या मुरीद की घर वाली ने बड़े भरा की घर ने कहती मां अणी अम्मा ये पुठ वाली अणी अम्मा मेरी मां कि तू तेल ला भरजाई अली उन्हें क्या मैं ला दी। वो तेल ना लग पई, मां ने ना कोल बैठी सी ढोल वजया बड़ी जोर का ते वो इको दा वाल चुक के ना हाथ ते पुछदा अणी अम्मा ये आवाज किदी ढोल दी। मां प्रीख्या लगी कह लगी पुत्र तेरे भरा मुरीद ने नवा चक बने पिंड नवा बने ओदी खुशी च ढोल वजदा नाली कहंदी वेख पेट तां इको ही है ना, मेरे कुख चो जन्म लिया वो नवे नवे पिंड बनांदा पिया ते तू जंगलों में ये मनी जंगल च गया फरीद जी। जे बाबा अमरदास 19 साल तीर्थां ते जांदे हो खंडन ते नहीं करदे। कह लगी देख तू किकर आ पीलू बेरियां मले दे बेर खाना मुरीद दा ढोल वजदा पिया कौमे च नहीं क्या कहंदा मां किन्नी दूर तो कहंदी पुत्र 3 कोहां तो कहंदा मां मुरीद दा ढोल 3 कोहां तो वजदा है, फरीद दा ढोल अजे कसीदा पिया, मेरा ढोल अजे मड़ींदा पिया है। याद रखी असीस तू नहीं, मुरीद का ढोल सिर्फ 3 कोहां तो सुनता है, जितन फरीद का ढोल बजेगा तो तिना लोगों भी सुनाई दे। कोई मान सी सीने ना ला के भरोसा है तू डोलेगा नहीं। दूजी गल तू उसकी मां ओदा तक पूरी डिटेल दी गुरु से भाई गुरदास है कि मतरई ने प्यो की गोद चो कढ़िया, मैं सारी नहीं सुनानी, तू असला कराया कर प्यार को कुछ लेता। जब धक्का बजे उन्हें मां को इको गल कही निका जा न्याणा 5 साल का कहता मैंने एक गल जिस तख्त ते मेरा प्यो बैठा मैं कह सकूं अणख सी ना राज का पुत्र सी। ते दूजी गल तू गोली है कि रानी है, जे तू गोली है तो मैनू प्यो की गोद च नहीं सी जाना चाहिए, तू समझाती कि मैं गोली हाँ तो मेरी कुख च तू जमे। जे तू राणी है तो मैं धक्के क्यों पाए। अगला सवाल किस उदम से राज मिले छतरी से सब घूमन कीता, छतरू से सब राज क्यों मिलेगा। मैं कहना मां कि कमाल की कहावत करी, वो ये भी कह सकती तेरी मतरई मां को देखांगे तेरे प्यो को कहांगे। उन्हें क्या पुत्र गल है हाँ मैं राणी पर मैं बंदगी कोई नहीं की। जो तू पोखरिस है तेन धक्के पाता पैंदे ने कि राज तेरे पैरों च रुड़ेगा मेरे बेटे की इबादत का। ये ना क्या सावाणी का जन्म दी नाम न भक्ति कर्म दृढ़ता। वो पूछता किस उदम ते राज मिले छत्रु ते सब होमन बीता। ते मां कहती परवेशर आराध्य जिद्दू गोई है पत पुनीता। मां ने तोड़िया राजे ने तरले मारे। एक मां फरीद दी एक ध्रुव दी अति गोपी चमकी। हले मैं सिख मावा वाल नहीं आया, मैं बेनती संखेप की करनी। गोपी चंद की मां ने तोड़ दिता पुत्र ते तोड़दिया कहती 3 गल्लां चिंते रखी मेरे बच्चे। एक तो रोटी 36 प्रकार के भोजन जो पक्के होण उदों खानी। दूजी गल किले तो बाहर नहीं निकलना। ते तीजा काम करी मखमली सेजा तो बिना सोना नहीं। मां ने समझ पाई तो खलो गया कहना मां मैनूं दस मैं तो राजपाग छड्ड के चलिया, मेरे लिए भगवान कौन लैके बैठा, तू कि 36 प्रकार का भोजन सेज ते किला। उन्हें क्या पुत मैं तेन की समझावा, मैं समझ तू समझ जाएगा। कहना मैं समझ नहीं पई। कहनी पुत्र किले च रहिए ते दुश्मन मार नहीं सकता
तू चलिया रब वाले पासे। गुरमुख महापुरखों के किले की संगत के किले चो दूर ना निकली, नहीं तो कलिया हो सकता है तेन बाश ना सकता। किले च रही, संगत किला है, इस तो बाहर ना निकली। दूजी का रोटी कह लगी घर घर मंग खा के पेटू ना बनती, उदों खाई जो भुख लगे, जो सुक्की रोटी की 36 प्रकार का भोजन बन जाता। कहना मां दो गल्लां सुन के अकेला ते रोटी। तीजी गल, तू ये शब्द क्या है कि तू समी तां कह लगी पुत तू इबादत कर चले, समी तां जे गहरी नींद आवेगी, जे तू पत्थरों ते भी सौ जाएगा, पत्थर भी सेब बन जाएंगे। उन्हें कहा मां मैं तू सीधा कहती गल्ला रंग सिखाया तोड़ दिता। बाद में विराह आके बड़ा रोई, वैन पाए उहदे नां ते। फिर शास्त्रकारा ने कहा तू अद्धा हिस्सा तोड़ तू दिता है, पर तू खुद मोज बसी। फरीद की मां ते ध्रुव की मुकम्मल ते गोपी चंद की मां शास्त्रकार कहते सन 2.5 अद्धा हिस्सा। पर मैं कहूँगा सब तो पहला अज जे महिला की गल करनी, चलो बड़िया बीबियां ने हर कम्यूनिटी बहुत किसी को निंदिए ना। सब तो पहला साडी को मां तृप्ता जिन्हें गुरु नानक साहब को जन्म दिता। ना ही तृप्ता ते सच्ची मुच्ची अंदरों तृप्त। उन्होंने बारे साडे इतिहास ने कहा कि जिस वक्त हजूर का आगमन होना सी, जिस थां ते मां तृप्ता रहिंदी सी, सच्ची मुच्ची उथों दा सारा आबा बदल जाता सी। जिस दिन गुरु नानक साहब को जन्म दिता, उन्होंने हथ के सारे गहने उतार दिते। पटवारी की घरों पेके भी बड़े अमीर, उन्हें कोई गहना सोने का नहीं रखा। तो कवि संतोख सिंह ने कहा कहता लोगों उन्होंने गहनिया की लोड़, जिहदी कुख नूं करोड़ा ब्रह्मंडा के मालक ने चुने, सोने की मुखार दी है। उस तो बाद मां ने बहुत मोहब्बत की। सब तो पहला गुरु नानक साहब की रूहानियत को पहचानने वाली बेबे नानकी, इन्होंने जरूर चेते कर लिया जी। बेबे नानकी 5 साल वधी है हजूर को। इन्हों का जन्म 1464 होया ते बेबे नानकी का चलाना जोड़ा 1518 होया सुल्तानपुर 1518। उन्हें सब तो पहला अपने वीर को पहचाना। जब मैं बेबे नानकी के इतिहास में पढ़ना तो मैं कहना कि एडी शरदा बापू गुस्से वाला सी, झिड़कदा सी, पर बेबे नानकी अगे जा खलोती सी। जिस दिन खरा सौदा किया बापू गुस्से च उन्हें हथ भी चुकया, कहने दौड़ के धियां वाला जोर दिखाया, बाबे कालू का हाथ मुक गया। जिस दिन बेबे का ब्याह हो गया सुल्तानपुर रह के भाई जयराम जी नाल, ते ये रिश्ता लाए गुलाब ते दौलत खान ने कराया सी। राय गुलाब बहुत प्यार करता सी इस परिवार को। इत्थों तक तुसीं देखो भावें कोई सज्जन कहते हैं ये शेरे पंजाब ने, पर उतों के भट्टी जो बोलता है 750 मरबा गुरु नानक के नाम से कराया राय गुलाब। अज भी उसकी रजिस्ट्री होंगी बुजुर्गो, उत्ते सिर्फ स्टैंप लगती है, वो सारे पिंडा के पिंड गुरु नानक के 750 मरबा। तो मैं कहना देने वाले तुम ही सिरे ला दिता, लैन वाले ने खड़ के एक सियाड़ भी नहीं कटी, उन्हें करतारपुर 100 एकड़ दिवाई की मारे वापस नहीं गए। बेबे नानकी आ गया हजूर कुछ उदास रहना। इतने फिर बेबे ने कहा भाई जयराम पिताजी सख्त सुभाव दे ने, नानक झिड़कते ना हो, बुला क्यों ना लेके। महाराज आ गए जी, देखो ममता कैसी। जो बुआ खड़काया, कुंडी खड़काई, बेबे ने भज के बुआ खोलिया। जन्म साखी वाला कहता है बाबा जी को सामने देख के वीर को इन्नी शरदा भिज गई, पैरों से देख गई जो डिगन लगी। हजूर ने घुट के पैर में सीने न लाया, कहने बेबे तू उड़े क्यों? पहले उड़ना है उससे पुरानी बोली बढ़ती, बेबे तू क्यों उड़े? इसका मतलब तू क्यों झुकनी है? तू वड्डी है मैं छोटा हाँ, मैं ताई तो होंदा नहीं, तू मत्था क्यों टेकिया? उन्हें भिजी हुई ने शर्त अच गया मैं तेन वीर जान के नहीं अपना पीर जान के मत्था टेकिया।
मैं मुर्शद जान के। देखो उस अज इस दिवस बेबे नानकी वर्गी शरदा कोई सारा पिंड डोल गया। सारा पिंड जो महाराज बैठ गए ते बेबे नानकी कर अफसोस करना आ गई बीबियां पिंड के 3 दिन हो गए ना सुल्तानपुर इकट्ठा हो गया। उन्होंने कहा चुको अपन सभा तुम एवं रोई जानिया जी कहती मेरा वीर डुबदा नहीं और डुबदिया तारना उन्होंने रोड़ नहीं कुछ सकता कहती तुम पता नहीं उन्हें बड़े कौतक किए ने बचपन से ये बड़ा बड़ा कौतक है देश को बाद बहुत कुछ बदल जाता सचिन जी कौतक जब आए तो बेबे नानकी खुशी न समाए उन्हीं पैसे दिते सन रवाब लैके आ। देखो बाबा श्री चंद जी परली सोना की क्यों क्योंकि पिता गुसैले सन। बाबा जी पहली उदासी तो आए मैं पढ़ना जयराम जी एक दिन बैठे घर मैं हूँ थोड़ा सा इतिहास शुरू कर लिया। मैं पहला बेनती बाणी तो की बाणी की स्त्री का रूप बहुत ऊंचा दसिया गया। घर बैठे जिवें बैठे होंगे ने घर दोवें जी ते भाई जयराम कहते नानकी परमेश्वर धन है। दूजा कहते ने गुरु नानक जी गुरु नानक धन है। तीजा कहते ने मां ते पिता वो भी धन ने। कहते नानकी तू बहुत धन है तू अभी भैन है। अगला शब्द कहते थोड़े थोड़े असी भी धन हो गए साडा रिश्ता उस घर नाल। जिस दिन हजूर पहली उदासी तो बाद होने 1518 मरदाना बड़िया गल्लां सुनांदा। बेबे नानकी कहती नाम मरदानिया कि रमजान जने कने अगे ना खोल। शाम में बैठे इकट्ठे सारे घर बेबे प्रसादा बनाया माता सुलखनी सारे बैठे ते बेबे ने शाम प्रसादा छका के क्या वीर चलो जो हजूर ने शब्द वरते सन मैं तेरे को चीज मंगनी कभी नहीं मंगया। मैं कुछ मंगना कह लगी हस के बेबे तू साडी खातर पिता का गुस्सा भी सहती तू कभी नहीं कुछ मंगया कुछ मांग। कह लगी बस सवेरे मैं शरीर छड़ जाना मेरा संस्कार अपने हथी करे बस इको चीज मंगी बेबे। पर जेडे साडे लोग मैं कहना कितनी प्रश्न बुद्धि ये कहना बेबे ने पुत्र क्यों ना मंग लिया तो तुहाडी सुरती कोई नहीं तुसी बेबे नूं किस नजरिए नाल देखदे इको चीज मंगी। सच्ची मुच्ची सवेरे तन छड़ दिता महाराज ने संस्कार किया। कल तक भैन कोल सी जीजा कोल सी भाईया कहते सन साडे पिंड वो भाईया कहते सन ते शाम नूं भाई जयराम कल्ले संस्कार तो बाद कहते मैं नहीं परसों चले जाना संस्कार मेरा भी करके जाए इकट्ठा जी बेबे नानकी ना। उस तो बाद मैं बेनती करा माता खीवी का गुरु ग्रंथ साहिब च नाम दो ही आया बलवंत खीवी नेक जन जिस बहुत ही शौक कराली। दूजा होंगे माता खीवी शौ सोए के गोए उठा वो लंगर के इंचार्ज इतों तक बाणी कहती है माता खीवी को जिन्ना मर्जी को कल्पे आ जाए वो इन्नी ठंडी शान सी सच्ची मुच्ची अपने पुत्रा तो बाद नाले रोटी खवानी नाले उन्होंने जेबा में पैसे पा देती सी। माता मनसा देवी गुरु अमरदास जी की बहन ये सन खतरा पिंड जी बिल्कुल बॉर्डर के उत्ते। गुरु अमरदास जी जो झुकन गए मैं उस पिंड की कथा करके थोड़ी कि नेड़े पाकिस्तान ने साहब उस तो बाद वो बीबी मैं अज भी सुना गया जी गुरु पुत्री गुरु पत्नी गुरु मां गुरु दादी गुरु परदादी सारे सन्मानी बीबी भाभी उन्होंने सेवा को छोटी लिखी। गुरुदेव ने जिस दिन मंजियां दित्तियां उस दिन बीबियां भी मंजियां दित्तियां। मैं सिर्फ पहला कहता सा दो सज्जन सच ते अपना मत्थो मिला ली नहीं मारी सेवा नहीं कदी दी महाराज ने मंजियां दी। गुरु रामदास ने बीबी भानी की सेवा उस तो अगे मैं बेनती करा जिसे ध्यान न देखिए कि सम्मान प्यारो ये दसना चाहिए दुनिया विच सब तो पहली जो शहीद है तो सम्मान माता गुजरी जी। इस तरह हम शहादत की शुरुआत माता जी तो उन्हें जुल्म वक्री गल है। महाराज ने क्या
जिनसे सोन पट्टियां मांगी पाए संदूर से ताती मुनि बाबर ने जन्म किया। जे स्त्रियां विच किसी कैद विच रह के अडोलता नाल अपने 9 साल के 7 साल के पोते नीआं च खड़दियां डोलता दी केवल ते केवल मात गुजरी तो आप शहीद होए। उस तो बाद मैं बेनती करांगा सन्मानयोग माता साहिब कौर जी। चलो पुराने इतिहासां च माता साहिब देवी हिस्टरी विच मात गुजरी होण ते साडे सारे माता गुजर कौर कहंदे आ। तुसीं बजुर्गों बैठे माता गुजरी सुनिया। एक नवां मैं पढ़िया कि गुरजीत कौर लिख दिता क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं ना। माता गुजरी जी उन्हां दी अडोलता तुसीं देखो। गुरु गोबिंद सिंह ने बकायदा अपनी मां की कमाई का जिक्र किया। तात मात और अलख आराधा बहुत जोग साधना साधा 3 दिन ठंडे बूटे च लैके पोतियां जिदन तोड़िया। अल्लाह यार का जोगी कहता अज 13 पोह की सवेर सी तोड़दियां प्यासी जाने से पहले आओ गले से लगा तो लूं केशों को कंघी करूं जरा मुंह दुला तो लूं प्यारे से सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं बेटा मरने से पहले तुमको दुल्हा बना दो। फिर माता सुंदरी जी माता जीत कौर जी प्लीज मैंने पता है ये इस संबंधी क्या जानता जी माता सुंदरी माता जीतो पर श्रोमणी कमेटी दी किताबां ते थावां ने माता जीतो जी चलाना आनंदपुर साहिब कीता है। माता सुंदरी ते माता साहिब कौर ने चलाना दिल्ली कीता है। बाला साहिब संस्कार किया गया ते माता जीत कौर जी उन्हां दा स्थान बोरगढ़ दे नजदीक है आनंदपुर साहिब। उस तो बाद असीं इतिहास में देखने वो बीबी जिहड़ी रात बैराग विच रोंदी दी है इस साहिबजादे दे संस्कार करदी बीबी शरण कौर। एक बीबी वही हरशरण कौर एक बीबी दीप कौर। मेरे कहने तो मुराद गुरु घर दे विच इस्त्री दी बहुत वड्डी थां है। इन्हूं इस ढंग नाल ना पैदा करो जी ये मर्द के बराबर। मैं कहना जिहड़ी गुरबाणी कह रही है कि रब तां रीत बैठे स्त्री नूं धोके पुकार करे कितनी वड्डी गल। सियाणे विद्वान कहते नारी निंदा मत करो नारी नर की खान नारी बीते होते रूप प्रहलाद महान नारी की स्त्री की भगतां महापुरखां कमाई वालियां जन्म देती है। मैं तां अज ये विषय थोड़ा जिहा ले लिया क्योंकि 4 सवेरे जमैला दिवस की गल हो रही सी ते सतगुरु अगे अरदास है साडी घरां नूं केवल मावां धीआं भैणां ही साਂਭਦੀਆਂ ने। वैगुरु इन्हां नूं भजन बंदगी सिमरन बख्शे। जे एक मां एक स्त्री मैं कहना बंदा बाहर की चर्चा एक धी नूं सहज पाठ की संध्या करा के तोड़ दोगे ना उन्हें जित मरते दम तक बुढ़ेपे तक उन्हें मंजी ते बैठी भी बाणी चेते कराई। ये बड़ी बड़ी बख्शिश है। इन्नियां बेनतियां स्वीकार करें।